آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے بہت بڑی ہستی جن کا نام ضیاء الدین ہے، ضیاء الدین محمد باقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ دوستان محترم، حضرت باقی باللہ کا تعارف میں کیا پیش کروں، یہ اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت باقی باللہ وہ ہیں کہ جن کے مرید حضرت مجد الفسانی امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ کا تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جس طرح کہ حضرت مریم کا تعارف کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، مگر ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ اسی طرح خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ مرشد ہیں امام ربانی کے، مجد الفسانی کے۔ دوستان محترم، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بہت بڑے صوفیہ کے اور نقش بندیوں کے امام گزرے ہیں۔ بر صغیر کے اندر جو بڑے امام ہیں وہ نقش بندیوں کے، وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا تعلق ترک سے ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ آل سے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت امام حسن حسینی کی آل سے ہیں۔ دوستان محترم، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کو 8 سال کی عمر میں قرآن حفظ مکمل کر لیا تھا۔ آپ کی 8 سال کی عمر تھی، قرآن مکمل کر لیا، پھر درس نظامی کے لیے نکلے اور علم حاصل کر کے پھر شیخ کی تلاش کے اندر نکلتے ہیں۔ دوستان محترم، جب شیخ کی تلاش کے نکلتے خواب کے اندر آپ کے شیخ ملتے ہیں حضرت خواجہ محمد مقتدیٰ عرف کنگھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ خواب میں فرمایا، بیٹا ہم تو تیری راہ میں آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں۔ جب آپ مرشد کامل کی بارگاہ میں گئے تو 3 دن کے اندر انہیں سلوک کی منزلیں طے کروا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان محترم، ایک سالک مجذوب ہوتا ہے اور ایک مجذوب سالک ہوتا ہے۔ جو سالک مجذوب ہوتا ہے وہ ہے جو تزکیہ نفس کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے اور شریعت پر پابند رہتا ہے، اور شریعت پر پابندی کرتا ہوا پھر وہ اللہ کا قرب پاتا ہے۔ اس کو سالک مجذوب کہتے ہیں۔ اور جو مجذوب سالک ہوتا ہے، اللہ پہلے اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، پھر وہ سالک کی منزل طے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں جو اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ دوستان محترم، 8 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرتے ہیں اور پھر شیخ کی تلاش میں ہیں، اور شیخ کی تلاش کرتے کرتے پھر جب مرشد کی گئے، مرشد نے آپ کو وہ منزل طے کرائی جو ایک مرشد کامل کراتا ہے۔ پھر آپ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے جس کے پرندے کے منہ کے اندر آپ اپنا لب ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے مرشد کو یہ خواب سنائی تو کہا، بیٹا آپ کا بر صغیر میں جانے کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ اس وقت یہ فتنہ اکبری بادشاہ کا شروع ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ علماء کی داڑھیاں منڈوا دی گئیں، حج سے منع کر دیا گیا، کہا نمازیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، حج کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، مکہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اکبر بادشاہ اور جو اپنے آپ کو سجدہ کرانے لگا، جب یہ فتنہ اٹھا تو پھر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی وہاں پر ڈیوٹی شروع ہوئی۔ آپ لاہور میں تشریف لائے اور لاہور سے پھر آپ سفر کرتے ہوئے بر صغیر کی طرف، انڈیا کی طرف آپ نے رخ کیا، مگر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید خاص حضرت امام ربانی کہتے ہیں کہ کاش سیڑھیاں میرا مرشد اتر رہا ہو اور میرا سر ہو اور مرشد کا پاؤں مبارک ہوں اور میرے سروں سے گزرتے ہوئے سیڑھیاں اتریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ جو لوگ شیخ سے محبت کرتے ہیں اور فنا فی شیخ
उस वक्त ही होते हैं जब वो शेख की मोहब्बत में फ़ना हो जाते हैं। वो कहते कि मेरा सर हो और मेरे मुर्शिद के कदम हों, ये तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ बाही दी बावां, पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं मुर्शिद दे पैरी आवां, जे सोना मिल जाए ते मैं रो रो हाल सुनावा। दोस्तों मोहतरम, आगे चलते हैं। आपको अख़फ़ाए हाल बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अख़फ़ाए हाल के मतलब मैं चंद बातें ज़रूर पेश करना चाहता हूँ। आपका अख़फ़ाए हाल ये था कि आप अपने आप को छुपाते बहुत थे, बहुत छुपाते थे, यहाँ तक कि आपके पास एक औरत आई, उसका बच्चा छत से गिर गया जिसके नाक और मुंह से खून था और बच्चा बेहोश था, पता नहीं था कि बेहोश है या मर चुका है। वो और दौड़ती हुई आई कि अल्लाह की वली की बारगाह में शायद अल्लाह का वली ये दुआ कर देगा तो मेरे बच्चे को नई ज़िंदगी मिल जाएगी। वो दौड़ती हुई लेकर आई तो आपने ये नहीं कहा कि मैं दम करता हूँ आपका बच्चा ठीक हो जाएगा या मैं देख रहा हूँ आपका बच्चा, नहीं, बल्कि कहा अच्छा आप बैठ जाए, मैं देखता हूँ किताब से। अब किताब को खोलते हैं और कहते हैं हाँ किताब कह रही है कि आपका बच्चा बच जाएगा। फिर कहते हैं बीबी मैं किताब देख रहा हूँ, किताब ये कह रही है कि आपके बच्चे को नई ज़िंदगी मिल जाएगी, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। यानी ये नहीं कहा कि मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़र काम कर रही है। यानी इतना अपने आप को वो छुपाते। अल्लाह अकबर। कोई मुरीद होने आपके पास आता, कोई बेतके ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे, जो आप पास मुरीद होने आता तो आप ये नहीं कहते कि मैं आपको मुरीद करता, ना कहते भले मियाँ जो जिसके बारे में आपने सुन रखा है वो मैं नहीं हूँ, कोई और है, जाए किसी अल्लाह वाले की तलाश में जाए, और अगर अल्लाह वाला आपको मिल जाए तो फिर मुझे भी बताना, मैं भी उनकी कदम बूसी के लिए हाज़िर होऊंगा, उनकी सोहबत में मैं भी बैठूँगा। ये आपका हाल और ये आपकी आजिज़ी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी अपने आप को छुपाना है। आज तो मुरीदन के लिए ज़ेन साजी की जाती है और कुछ मुरीदन के चेले मुरीद के होते, पीर के होते हैं, जो लोग ज़ेन साजी कहते हैं कि पीर बड़ा कमाल करता जी, बड़ी करामत है, मेरे मुर्शिद की क्या बात है, हाँ जी। और बाकायदा ऐलान होता है कि जिसने मुरीद होना है वो हो जाए, आ जाए और मुरीद हो जाए महफ़िल के बाद। मगर याद रखिएगा सूफियों का हाल ये है, वो ख़ुद मुरीद नहीं करते, अगर किसी खुद करते हैं तो वो कमाल का शख्स होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कमाल के दर्जे पर पहुंचा होता है, उसको वो खुद ख्वाहिश करते हैं कि ये मेरा मुरीद, वरना वो किसी को मुरीद नहीं करते। पर ये अलहदा बहस है। दूसरा मुजरम अख़फ़ाए हाल, आपका हाल ये था कि अपने आप को बड़ा छुपा कर गुज़रते। एक बुज़ुर्ग ने आपकी बारगाह में सवाल किया कि हुज़ूर ये मुझे समझ में नहीं आता, जब आपके पास कोई मुरीद होने आता तो आप कहते हैं मैं तो एक गुनाहगार हूँ, और आप किसी नेक के पास जाएं उससे मुरीद हों, मगर हुज़ूर ये क्या झूठ नहीं है? और अल्लाह वाले तो झूठ नहीं बोलते, मेरी समझ में नहीं आता, इसके अंदर मेरी इस्लाह फरमाएं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। आपने कहा बेलिया, बात यह है कि मैं जब अपने अमाल देखता हूँ और अपने से बड़ों के अमाल देखता हूँ तो फिर मैं अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ कि वो कितने पाए के लोग थे और हम उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। कि जिस तरह इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे का हाल ये था, आपको सफ़ी कहा जाता था, यानी कि 50 साल इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह के बेटे ने पहली सफ़ में तकबीर ओला के साथ नमाज अदा की, 50 साल तक तकबीर ओला फ़ौत नहीं होने दी, जमात फ़ौत होने नहीं दी, तो आपको सफ़ी कहा जाता था। सफ़ी के आपके लक़ब से इमाम हसन बसरी के साहबजादे जो है ना मशहूर थे। आप कहते हैं कि देखो जब इतना बड़ा बंदा सामने हो तो हमारे अमाल उसके मुकाबले में कुछ नहीं, तो इसलिए हम अपने आप को गुनाहगार ही समझते हैं। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द हैं, उनका बाप फौत हुआ तो उसकी जमात छूट गई, यानी कि नमाज का वक़्त नहीं, खाली जमात छूटी, और उसने 27 मरतबा नमाज को दोहराया ताकि मुझे वो मुकाम हासिल हो जाए, वो अजर मिल जाए जो एक जमात के साथ बंदा पढ़ता है तो 27 नमाज़ों का सवा मिलता है। तो 27 मरतबा नमाज को दोहराया
ताकि वो मुझे पूरा पूरा अजर मिल जाए। जब वो नमाज़ पढ़ के सो गए तो ख्वाब के अंदर क्या देखा कि दो फरिश्ते कहते हैं कि एक बंदे की जमात तो फौत हो गई, उसने 27 मरतबा नमाज को दोहरा तो लिया, पढ़ा तो है उसने 27 मरतबा, मगर अजर पाने के लिए, मगर उसको ये ख़बर नहीं है कि जब इमाम कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जो और मुक्ति कहता है आमीन, कहते जो इसमें कहने में जो लज्जत मिलती है उस लज्जत को वो नहीं पा सकता। इससे भी ज़्यादा मरतबा अगर वो नमाज़ पढ़ेगा तो जो नमाज इमाम के पीछे वलद्दाल्लीन और आमीन कहने की लज्जत है वो नसीब नहीं होती। और हमें भी चाहिए कि नमाज बाजमात अदा किया करें। ये देखें उनका हाल ये है कि अगर जमात छूट जाए, हमारी तो नमाज़ें निकल जाती हैं ना जी, बाप फौत हुआ, जमात छूटी है, नमाज का वक़्त नहीं छूटा, मगर हालत देखें कि उसने 27 मरतबा नमाज को पढ़ा है। अल्लाह करीम हमें भी ऐसी नमाज़ें अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए और ऐसी नमाज़ें क़ायम करने की तौफीक अता फ़रमाए। दोस्तों मोहतरम, आपका एक कौल ये भी है कि फ़ेल हराम आज नतीजा लुकमा हराम अस्त। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमत फरमाते हैं कि जो बंदा गुनाह करता है वो समझ जाए कि उसने लुकमाए हराम खाया है। आपकी बारगाह में एक बहुत बड़ा तालिब है जिसका बातन रोशन था, जब वो आपकी बारगाह में आया तो कहा कि हुज़ूर मैं जब नज़र मारता हूँ तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे समझ नहीं आ रहा आज मेरे साथ क्या मामला हुआ है। आपने फरमाया तूने बेलिया लुकमा हराम खा लिया है। कहा हुज़ूर ऐसा नहीं हो सकता, मैं रिज़्क़ के मामले के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ, मैं हराम नहीं खाता, पसंद नहीं करता। मगर आपने फरमाया नहीं बेलिया, बात यही है। जब उसने एहतसाब किया, गौर किया कि कहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई, मगर देखा पता चला उनकी बीवी घर पर लकड़ियाँ नहीं थी तो उसने हमसाई की एक लकड़ी लेकर वो जलाकर खाना पकाया, वो खाना लुकमा खाया और उस तालिब का सब कुछ ही चला गया, वो नूर अंधेरे में बदल गया। दोस्तों मोहतरम, एक तालिब हो और अल्लाह वाला हो, वो एक लुकमा खाने पर उसकी हालत ये हो जाए कि जब वो नज़र मारे तो उसको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आए। और हम तो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक वक्त आएगा क़यामत की निशानियों में से निशानी ये भी है कि लोग हराम और हलाल की तमीज़ को भूल जाएंगे, नहीं पता चलेगा कि ये हराम, बस वो कहेगा कि माल आना चाहिए, किसी तरह भी आ जाए, हलाल से आए हराम से आए, बस आना चाहिए। दोस्तान मोहतरम, फरमाया जब बंदा गुनाह करता है तो फिर ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाते हैं कि सोच ले कि उसने लुकमा हराम खाया है। अगर आपकी तबीयत गुनाहों की तरफ माइल होती है, उस तरफ जाती है, आपका नफ्स गुनाहों की तरफ आपको धकेलता है, तो समझ लें कि आपको रिज़्क़ हलाल नसीब नहीं हो रहा। आइए रिज़्क़ हलाल खाइए। दूसरे मोहतरम, तीसरा आपका उसाब बयान करके अपनी गुफ्तगू को समेटूँगा। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह आप खिदमत खल्क़ का बड़ा जज्बा रखते थे। जब आप लाहौर से चले हैं दिल्ली की तरफ तो रास्ते के अंदर देखा कि बुज़ुर्ग हैं, वो आप जवान थे, तो आपने कहा बाबा जी आप मेरे घोड़े पर सवार हो जाएं, आप मेरे ऊँट पर सवार हो जाएं, क्योंकि मैं तो जवान हूँ चल लूँगा, मगर आप बुज़ुर्ग हैं थक जाएंगे। उसको बिठाया और चल दिए। रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिले, उसने कहा बाबा जी क्या कर रहे हो, किसको आप पैदल चला रहे हो, खुद बैठे हो, तुझे आपको पता नहीं है ये कौन है? ये ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। आपने फ़ौरन उसको डांटा, कहा पहले खबरदार ये कुछ न कहना, ये तो मेरे बड़े हैं, ये तो मेरे बड़े हैं, यानी कि उसके बुज़ुर्गों की शान को बढ़ाया। कहा नहीं नहीं ये मेरे बड़े हैं, इनको कुछ नहीं कहना। दोस्तान मोहतरम, फिर आपने अपने चेहरे पर कपड़ा रख लिया ताकि किसी को पता ना चले, ताकि कोई बाबा जी को कुछ कह ना सके, और आपने सारा सफ़र पैदल किया और बाबा जी को सवारी पर। ये वक़्त का वली है और बाकी बिल्ला है। हालत ही देखिएगा, आज हमारे भी पीरगान है, सादगान है, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। अगर कोई हाथ मिलाए तो धक्का दे दिया जाता है, उनसे मिलने नहीं जाता, वो मिलना पसंद नहीं करते, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। मगर जो अल्लाह वाले होते हैं खुद पैदल चलते हैं और दूसरों को सवारियों पर सवार करते हैं। दुआ करें कि इस
वो तो पुरफितन दौर के अंदर भी हमें बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और ख़ुसूसन हमारे जो इस वक्त के पीर साहिबान हैं, अल्लाह करे वो भी बुजुर्गान दीन के नक्शे पर चलें और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह का हाल ये था कि आप नमाज़ पढ़ के इशा की आए ताकि थोड़ी देर आराम करके तहज्जुद के लिए उठ जाऊँगा, मगर आपने क्या देखा कि आपके कमर पर बिल्ली बैठी है, और बिल्ली पूरी नहीं बैठी, उसके खाली दो पंजे अगले वाले हैं, कंबल के ऊपर हैं, मगर आपने कंबल नहीं उठाया ताकि बिल्ली के आराम के अंदर खलल ना आ जाए। सारी रात इसी इंतज़ार में रहे तहज्जुद तक कि ताकि ये बिल्ली उठे और फिर मैं कंबल लेकर थोड़ा सा आराम कर लूँ, मगर सर्दी के अंदर ठिठुरते रहे, मगर आपने बिल्ली को नहीं उठाया। अल्लाह। इमाम शाफी से किसी ने पूछा कि हजूर आपका कौन सा अमाल बस अल्लाह को पसंद आया? कहा अमाल तो बहुत सारे थे, मगर मैं एक दिन लिख रहा था और मेरी स्याही पर आकर मक्खी बैठ की गर्मी थी, मैंने कहा इसको प्यास हो गई, मैंने लिखना छोड़ दिया कि तब जब तक ये शराब ना हो जाए और ख़ुद ना चली जाए। तो मैंने कहा अल्लाह को नेकी तो बड़ी पसंद थी, मगर सबसे नेकी मेरी ये पसंद आ गई कि मैंने मक्खी को नहीं उड़ाने दिया। इधर हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला की हालत ये है कि आपने बिल्ली को नहीं उठाया, जिसके हालांकि अगले वाले दो पाँव जो पंजे थे वो उसके ऊपर आपके कंबल पर थे। ये मखलूक खुदा की आपकी इतनी रखते थे, ख्याल रखते थे। अल्लाह पाक हमें भी इस तरह जज्बा अता फरमाए। हज़रत अबू बकर सदीक अल्लामा इकबाल की ख्वाब के अंदर तशरीफ़ लाते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैंने पूछा अबू बकर को सवाल किया, उन्होंने सवालों का जवाब दिया, कहा इकबाल मैं जा रहा हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं हाथ जोड़कर सैयद अबू बकर सदीक की बारगाह में खड़ा हुआ, मैंने कहा ए अबू बकर जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कहा इकबाल कौन सा है? मैंने कहा हुज़ूर ये बताइए कि दीन की तारीफ़ क्या है, दीन क्या है, दीन की तारीफ़ क्या है? और अल्लामा इकबाल कहते हैं अबू बकर सदीक ने कहा इकबाल सब कुछ आका यार के कदमों पर, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान कर देना का नाम दीन है, और यही दीन की तारीफ़ है कि जो कुछ भी मिले वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान कर दिया जाए। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला की हालत ये थी, आपकी बारगाह के अंदर एक नान भाई जो आपकी रोटियां पकाता था और लोगों को खिलाता था, रात का टाइम था और ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह की मेहमान आ गए। आपने वो नान भाई को आवाज़ दी, बेटा खाने के लिए कुछ है? क्या हुज़ूर मैं बंदोबस्त करता हूँ। हालांकि कुछ भी नहीं था, और दोस्तों मुहतरम देखा तो लकड़ियाँ जलाने के लिए भी नहीं थी, मगर वो आपसे मोहब्बत बड़ी करता था। उसने अपने टांगों पर कपड़े लपेटे और उस पर तेल छिड़का और आग लगा दी और चूल्हे के अंदर टांगों कर दिया, और वो कपड़े जलते रहे और वो खाना पकाने लग गया, हत्ता कि उसकी टांग भी जल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह मौला रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी नान भाई था, उसकी भी हालत ये थी कि रात को मेहमान आ गए, उसने भी ऐसे ही टांग जलाई, और लिखा है कि वो रोज़ ऐसा करता, जब भी लकड़ी ख़त्म होती वो टांग जलाता और रोटी पका लेता, मगर जब सुबह उठता तो उसकी टांग सलामत होती। और ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का भी नान भाई का ये हालत थी, जब टांग जलाकर उसने खाना पकाकर मुर्शिद की बारगाह में पेश किया, कहा बंदे खुदा जाकर सो जा। वो सो गया, जब सुबह उठा तो उसकी टांग सही और सलामत थी, ऐसे जैसे जली नहीं है। जब नान भाई की ये मोहब्बत आपने देखी, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया बेटा मांग, क्या मांगता है? तूने दिल खुश कर दिया है और तूने मोहब्बत की इंतहा कर दी है। अर्ज़ किया हुज़ूर मैं भी बाकी बिल्ला बनना चाहता हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि जिस तरह आप इबादत करते हैं, रियाज से करते हैं, जिस तरह आप रब के करीब हैं, मैं भी वही ख्वाजा बाकी बिल्ला बनना चाहता हूँ। आपने फरमाया बेलिया और कुछ मांग ले? कहा नहीं हुज़ूर मैं बाकी बिल्ला बनना चाहता हूँ। जब बार बार इसरार किया तो आपने कहा अच्छा, फिर आपने उसको ज़िक्र और फ़िक्र करवाया और उस पे कल पर हाथ रखा, कहा आंखें खोल। जब आंखें खोली तो वो बाकी बिल्ला बन चुका था। जब वो बैठता तो आपकी तरह बैठता, जब वो बोलता तो आपकी तरह बोलता, जब वो देखता तो आपकी तरह देखता, जब वो लेटता तो आपकी तरह लेटता, जब इबादत करता तो आपकी तरह करता।
कोई फ़र्क ना रहा। बस इतना फ़र्क था कि वो आप होश में थे ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला, मगर वो मदहोशी की तरफ थे। 3 दिन तक वो रहा मगर मदहोश रहा, बस मदहोश रहा, वो अपने आप को संभल न सका और इसी हालत में वो जान दे चुका था। लोगों ने पूछा हुज़ूर वो बाकी बिल्ला कहाँ है? तो कहा वो बाकी बिल्ला तो नहीं बन सका, हाँ बिल्ला बन गया मगर बाकी ना बन सका। किसी ने पूछा हुज़ूर बाकी बिल्ला की तारीफ कैसे, मुराद क्या है? आपने फरमाया कि जब मेरा जनाजा पढ़ाने वाला आए उससे पूछ लेना कि बाकी बिल्ला की तारीफ़ क्या है, वो बताएगा कि बाकी बिल्ला क्या है। जब आप फौत हुए दोस्तान मोहतरम और आपकी पेशानी पर लिखा था ये अल्लाह की मोहब्बत में रहा है और अल्लाह की मोहब्बत में ही जा रहा है, और आपकी हालत ऐसी थी जैसे ताज़ा गुस्ल किया हो और आपका चेहरा चमक रहा था और ज़ोहर असर का टाइम था, ज़ोहर या असर का, उसी हालत के ज़िक्र के अंदर ही आप अल्लाह की बारगाह में ज़िक्र कर रहे थे और उसी ज़िक्र के अंदर ही अल्लाह से मुलाकात के लिए चले गए। दोस्तों मोहतरम, मेरा और आपका तो मरना है, मगर जो अल्लाह वाले होते हैं वो मरते नहीं हैं, बल्कि मौत एक पुल है जिससे गुज़र कर एक यार की दूसरे यार से मुलाकात होती है। बंदा अपने रब से मिलता है, कब मिलता है? जब बंदा मौत का जायका चखता है। इसलिए मौत पुल है, मौत मारने के लिए नहीं आती, मौत रब से मिलाने के लिए आती है। और मौत रब की मुलाकात के लिए एक बहाना है। दुआ करें हमें भी अल्लाह तैयारी करने की तौफीक दे, इस तरह तैयारी करें और मौत का ऐसे इंतज़ार करें जैसे रब की मुलाकात के लिए बंदा इंतज़ार करता है। जब ये हालत होगी तो इंशाअल्लाह ये मौत के ज़रिए ही इंशाअल्लाह यकीनन रब से मुलाकात हो जाएगी। दोस्तान मोहतरम, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह कमाल के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और आप पर कमाल था। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी हालत ये थी, आप कहते कि मैं अपने शेख की बारगाह में रहता, उनकी खिदमत करता रहता और कपड़े धोना, उनके खाने का बंदोबस्त करना मेरे ज़िम्मे था, मगर मैं एक कुरान दिन को पढ़ता और एक कुरान रात को पढ़ता। आपका ये मामूल था। अल्लाह अकबर। और आप आजिज़ी की इंतहा ये थी कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमत वक़्त का मुजद्दिद आपका मुरीद है, मगर जब बैठते तो पता नहीं लगता था कि मुरीद कौन सा है और पीर कौन सा था। दोनों हम उम्र थे और आप खुद कहते हैं कि सारे बुज़ुर्ग मुजद्दिद अल-अफ़सानी के सामने ऐसे ही हैं जैसे सूरज के सामने तारे होते हैं। कहा जैसे तारों के जब सूरज निकलते तारे उसके सामने छुप जाते हैं, तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी ऐसे पाए कि अल्लाह के वली हैं कि उनके सामने हम जैसे तारे छुप जाते हैं। ये मुर्शिद अपने मुरीद के बारे में कह रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरे जब कहा कि बाकी बिल्ला का मुराद क्या है, जब किसी ने सवाल किया तो आपने कहा जो मेरा जनाजा पढ़ाने आएगा वो बताएगा कि बाकी बिल्ला किसको कहते हैं। जब वो जनाजा पढ़ाने वाला नकाब पोश था, जनाजा पढ़ाया, सवाल करने वाला जनाजे मौजूद था, उसने आगे बढ़कर घोड़े वाले का रास्ता रोका, जाने वाले एक सवाल का जवाब दे दे। हज़रत बाकी बिल्ला ने फरमाया था जो मेरे जनाजे पर आएगा जनाजा पढ़ा उससे पूछिएगा। कहा क्या सवाल है? कहा सवाल ये है कि बाकी बिल्ला किसको कहते हैं। तो उसने अपने चेहरे से नकाब उठाया तो हज़रत बाकी बिल्ला थे। कहा जो चारपाई पर लेटा है वो बिल्ला है और जो घोड़े पर सवार है ये बाकी है, इसे बाकी बिल्ला कहते हैं। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह।